Please write it down, beta. This is your aim. So what we are going to estimate today? Serum albumin. First of all, please tell me what is albumin. It is plasma protein. It is plasma protein. Where it is synthesized, beta? Kaha? Liver. Good. Now, what is the composition, or you can say percentage of albumin in serum, or you should say blood, out of all the total blood proteins? How much does it constitute? कितना? अब नॉर्मल रेंज है, उसमें थोड़ी देर बाद आता. Tell me, if there are, let us say, the total percent of blood protein is 100, what percent does albumin constitute in that fraction? कितना परसेंट एल्ब्यूमिन होता है बेटा टोटल ब्लड प्रोटीन्स में? कितना? नो, 70 to 80. नो, it is roughly 60 to 65% of total blood proteins, beta. Albumin constitutes 60 to 65%. Okay, roughly 60%. What is the fraction of globulin? Globulin is also a very important component, beta. Study of albumin or estimation of albumin is worthless until and unless we do not correlate the results with globulin. Okay, globulin कितना होता है बेटा? Globulin constitute, beta, roughly 20 to 30%, 25% mean value. You can say 25%. Rest all are minor blood proteins. जैसे कहना चाहिए prothrombin, fibrinogen. Then there are other blood proteins also, बेटा. खाली ये 4 नहीं होते, बहुत सारे और होते हैं. जैसे एक होता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन. क्या काम होता है बेटा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का? बेटा रेटिनॉल लेके चलता है ब्लड. ठीक है, फोन्स बेटा साइलेंट करो प्लीज. नाउ टेल मी व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन. अब एल्ब्यूमिन के फंक्शंस पे आते हैं बेटा. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन? बोलो. Yes, it binds with, beta, your answer is partially correct. Partially. There is one very important word missing in it. In bilirubin context only. It prevents edema by maintaining oncotic pressure. By maintaining oncotic pressure. Yes, anything else, beta? I'll correct you in a moment or two. Anything else? Transport of hormones, transport of drugs, and transport of unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin. The gentleman there was absolutely right that it transports bilirubin.
मैं कॉल कर दूंगा, that it transports bilirubin but it transports unconjugated bilirubin. Now why unconjugated bilirubin? Because unconjugated bilirubin is water insoluble. बेटा ब्लड का मेजर फ्रैक्शन क्या होता है? वाटर. क्या होता है? आई थिंक इट इज 50 to 55% प्लाज्मा. होल ब्लड में 50 to 55% बेटा प्लाज्मा होता है, एंड दैट प्लाज्मा इज इटसेल्फ 95% वाटर. तो रफली 50% बेटा दैट इज वाटर. एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर. लेकिन उसे लिवर तक तो लाना पड़ेगा ना बेटा, ताकि वहां पे कॉन्जुगेशन हो सके. So how it has to be transported? It is transported via albumin. After conjugation बेटा it becomes water soluble. फिर तो ब्लड में आराम से ट्रेवल कर सकता है. So this is the function of albumin. Never say bilirubin as a whole बेटा. Always say unconjugated bilirubin. Okay? Unconjugated bilirubin. Then transport of certain ions also. Albumin. These are the functions of albumin, but the major ones are transportation of drugs, transportation of hormones, transportation of unconjugated bilirubin, maintaining oncotic pressure, even nutritional value also. How nutrition beta? When you are on prolonged starvation, जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं बेटा, तो बॉडी क्या करता है? It starts breaking down your proteins. But what proteins बेटा? Although muscle से बेटा कुछ अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं फॉर ग्लूकोन्यूजेनेसिस, but in severe condition beta, in severe malnutrition or starving conditions, even albumin also starts to get metabolized. There is something called beta this, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लड प्रोटीन्स में. पढ़ा है बेटा, A/G रेशियो, एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो. मैंने आपसे कहा था ना, नो एस्टिमेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इज कंप्लीट until and unless it is correlated with globulin. बेटा जब एल्ब्यूमिन मेटाबोलाइज होने लग जाएगा तो ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा. नॉर्मल क्या होता है अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब क्लिनिकल पार्ट पे आएंगे. नाउ व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एल्ब्यूमिन इन सीरम और ब्लड? 3.52 क्या बेटा? नो, ग्राम पर डेसीलीटर बेटा. मिलीग्राम तक आते आते तो काम बहुत खराब हो जाएगा. इट इज 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर. ग्राम, डू नॉट राइट मिलीग्राम बेटा. क्रिएटिनिन, यूरिया, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, ये सब बेटा mg में चलेंगे, बट फॉर प्रोटीन इट इज ग्राम. द यूनिट इज ग्राम पर डेसीलीटर. तभी तो कहते हैं बेटा जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए. लेट अस से समवन इज हैविंग 75 kg ऑफ बॉडी वेट, हिज डेली रिक्वायरमेंट इज 75 grams ऑफ प्रोटीन. तभी तो वो नॉर्मल वैल्यू मेंटेन रहेगी. देन आफ्टर द नॉर्मल रेंज बेटा, what else is there for albumin? ठीक है, now we should start writing the principle. The basic introduction is over. Now start writing down the principle. First write down the name of the method. The name of the method is BCG method. Which method? BCG, bromocresol green. Which method? Bromocresol green. ट्राई टू कोरिलेट थिंग्स बेटा. टोटल प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे? टोटल प्रोटीन एस्टिमेट किया? हैव यू एस्टिमेटेड टोटल प्रोटीन बेटा? हैव यू ऑल एस्टिमेटेड टोटल प्रोटीन? टोटल प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे बेटा? बाइयूरेट मेथड. व्हिच मेथड? बाइयूरेट मेथड. बट फॉर एल्ब्यूमिन वी आर एस्टिमेटिंग विद व्हिच मेथड? BCG, bromocresol green method. Now write down the principle. Albumin in serum sample
reacts with albumin in serum sample reacts with dye, D-Y-E, dye, bromocresol green, bromocresol green, bromocresol green, ये in buffered medium or solution, in buffered medium or solution, to form a which colored complex beta? Yes, to form a green color complex, to form a green color complex. अगर आपको देखना है ना बेटा कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, आपकी जो शर्ट है ना बेटा, ये जो आपने पहना है, एग्जैक्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, टू फॉर्म अ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स. Intensity of the colored complex is directly proportional to the amount of albumin present in the serum sample. Albumin present in the serum sample. Okay. You can write down this basic reaction beta. ठीक है. Albumin in the serum sample beta, it will react with BCG reagent. Which reagent? BCG reagent in a buffer medium. The buffer medium is provided there only, in the kit only, to form a green color complex. To form a green color complex. Now keep your pens down here. 2 मिनट के लिए. Next part is the sample collection part. इसको ध्यान से सुनना. The sample collection part. Please listen to it very carefully. Which are the 4 major blood proteins बेटा? चलो 3 बताओ. Major 3 ही होता है. Albumin, globulin and fibrinogen. जो चौथा होता है बेटा वो होता है प्रोथ्रम्ब. लेकिन चलो उसको हम safely exclude कर दें. What are the 3 major blood proteins बेटा? Albumin, globulin, fibrinogen. To get a correct value of this albumin using the BCG method, should we estimate in blood or serum? Think carefully. Blood में estimate करेंगे या serum में estimate करेंगे? जरा 2 मिनट लगा के ध्यान से सोचो. Because often in the Viva the questions are asked. The most famous one is beta, this blood glucose. While estimating blood glucose, why do we prefer serum sample beta? Why not in whole blood? सिमिलरली फॉर क्रिएटिनिन बेटा, उसे सेंट्रीफ्यूज करके सीरम क्यों निकालते हैं? होल ब्लड में क्यों नहीं एस्टिमेट करते? प्लाज्मा में क्यों नहीं करते? जस्ट थिंक फॉर दिस, दैट व्हाई वी आर टेकिंग सीरम और व्हाई वी आर टेकिंग प्लाज्मा और व्हाई वी आर टेकिंग द होल ब्लड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एल्ब्यूमिन करेक्टली. देखो सीरम बाय डेफिनेशन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस, यानी कि सीरम में नेचुरली एक ब्लड प्रोटीन एब्सेंट होगी बेटा. कौन सी? फिब्रिनोजन. कौन सी? फिब्रिनोजन. विच प्रोटीन? फिब्रिनोजन. समझ आई बात बेटा? तो जो सीरम सैंपल हम ले रहे हैं बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लड प्रोटीन्स है. कौन सी?
एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। यहां पे एक चीज और, you should always take these side notes beta, these are very important. Firstly we'll take that serum sample, अभी कोई लिखना मत बेटा, ठीक। and by using biuret method, by using biuret method बेटा हम उसमें टोटल प्रोटीन एस्टिमेट कर लेंगे। क्या एस्टिमेट कर लेंगे? टोटल प्रोटीन। by which method बेटा? biuret method। टोटल प्रोटीन एस्टिमेट हो गया। let us say it has come 8 gram per deciliter, कितना? 8 gram per deciliter। Now in the same serum sample beta, by using BCG method, which method? BCG method, I can estimate albumin also। क्या estimate कर सकता हूं मैं? Albumin। अब मैंने BCG method से albumin निकाला। Let us say it has come 5 gram per deciliter। Can I find the value of globulin using these two values बेटा? क्या मैं ग्लोबुलिन की वैल्यू निकाल सकता हूं? सीरम में सिर्फ दो ब्लड प्रोटीन्स हैं बेटा, एक एल्ब्यूमिन है और एक ग्लोबुलिन है। क्या क्या है? एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन बेटा कितना होता है? एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन सीरम सैंपल में, विच इज 8। तो ग्लोबुलिन की वैल्यू ये आ सकती है बेटा 8 minus 5, which will be equal to 3 gram per deciliter। और यहां से हम A:G रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A:G रेशियो निकालो। इसका A:G रेशियो कितना आएगा बेटा? 5/3। कितना? 5/3, which would be roughly 1.67:1, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे हम चीजें कोरिलेट करते हैं लाइक दिस। इसीलिए सैंपल कलेक्शन बेटा हमें सीरम से कर, मतलब द सैंपल विच वी आर टेकिंग द सीरम सैंपल, नॉट द ब्लड सैंपल, क्योंकि उसमें टोटल प्रोटीन आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी होल ब्लड में, बहुत सारे प्रोटीन्स एस्टिमेट हो जाएंगे। हमें ग्लोबुलिन की शायद एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एबेरेशन। That is why we are using serum sample which only contains 2 blood proteins. First one is albumin, जो हम BCG मेथड से एस्टिमेट कर लेंगे, और ग्लोबुलिन एस्टिमेट करने के लिए बेटा हम उसे टोटल प्रोटीन की वैल्यू से माइनस कर देंगे। सो बोथ द टोटल प्रोटीन एंड दिस BCG, इसको हमेशा साथ में याद करना बेटा। कभी भी टोटल प्रोटीन का खाली प्रैक्टिकल याद मत करना और कभी भी खाली BCG का याद मत करना, दोनों को साथ में याद करना। Now, materials required beta, please write it down. Materials required. First, you can complete that part. Sample is the serum sample, centrifuged using red top vials. Red top vials. हाँ, red vial जो होती है बेटा, लाल वाली। Now, write down materials required beta. Materials required: micropipettes, blood vials, micropipettes, blood vials, disposable tips, BCG reagent. What is the full form of BCG beta? Bromocresol green. Bromocresol green. BCG reagent. Albumin standard. Albumin standard. Albumin standard, semi-auto analyzer, distilled water, etc. लिखने को तो आप और भी लिख सकते हैं बेटा, ग्लव्स लिख सकते हैं, बीकर्स लिख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स, क्यूवेट्स, मेजर यही है बेटा। आफ्टर दैट राइट डाउन द रिएजेंट कंपोजिशन। हाँ, एनी डाउट्स बेटा? किसी को कोई डाउट? आपस में डिस्कस ना करके बेटा मेरे से डिस्कस करो। राइट डाउन द रिएजेंट कंपोजिशन बेटा। फर्स्ट वन इज BCG reagent. First one is BCG reagent. कंपोजिशन लिखिए बेटा इसका। सक्सिनेट बफर,
100 millimole, 100 millimole. pH equals 4. pH कितनी होती है बेटा? 4. pH कितनी है बेटा? 4. Then after that, bromocresol green, BCG, bromocresol green, 0.2 millimole, 0.2 millimole, 0.2 millimole. Bromocresol green is 0.2 millimole. And detergents. कंपोजिशन इतना रिक्वायर्ड नहीं होता बेटा, इट वेरीज किट टू किट, मशीन टू मशीन, मेथड टू मेथड. It is just there so that it should be there in your textbook, these practical copies. याद करने की इतना कोई जरूरत नहीं होती. Now write down the procedural part. Procedure. Estimation has to be done. Estimation has to be done at wavelength. बेटा हम स्पेसिफिक फिल्टर यूज करते हैं ना, वी यूज स्पेसिफिक फिल्टर बेटा, जिससे हम कॉम्प्लेक्स का या जो भी कलर बनता है उसकी इंटेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं. So for here, for BCG, we are using 630 nanometer. The wavelength of the filter used is 630 nanometer. Incubation time is 5 minutes. Incubation time is 5 minutes. क्या समझ आया इससे बेटा? Is it end point reaction और kinetic reaction? End point reaction. देखो अभी इतनी गर्मी है ना बेटा, इसमें एंड पॉइंट रिएक्शंस बहुत स्मूथली फ्लो कर जाएंगे. 5 मिनट इंक्यूबेशन है तो 5 मिनट में हो जाएगा. बट एट कोल्डर प्लेसेस या दिसंबर जनवरी में जो आपका जूनियर बैच आएगा वो प्रैक्टिकल करेगा, उस टाइम पे बेटा रिएक्शन प्रोसीड करने में थोड़ा टाइम लगता है. सो इंक्यूबेशन टाइम इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स ऑल्सो, डिपेंडिंग कि कब तक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. एंड पॉइंट मेथड में ये होता है बेटा कि हमको नहीं पता करना कि इसका क्या काइनेटिक्स है, क्या पाथवे फॉलो कर रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑल दैट वी वांट is each and every reactant is converted into product. But in kinetic method, we are more concerned with the rate of reaction, how the reaction is flowing. Okay. Now, write down the that procedural part. Draw that table. I hope everyone is comfortable with these abbreviations better. This one is the blank, this one is the standard, and this one is the test. Good. Now, please pay attention here beta. We will be adding BCG reagent. We will be adding BCG reagent. In all the 3 test tube, how much beta? 1000 microliter. कितना? 1000 microliter. It is roughly 1 ml. कितना? 1 ml. 1000 microliter. BCG reagent. BCG reagent. After that, we would be adding. इसके बाद क्या ऐड करेंगे बेटा? Distilled water. We will be adding
डिस्टिल वाटर किस में ऐड होगा बेटा? किसमें? Why in blank? Why distilled water is added in blank? बोलो. Why distilled water is added in blank? Calibration is a different thing. For setting up the zero, calibration also roughly translate that only, but calibration is slightly different thing. It is not just actually setting up of the zero. It's all together a different thing. So it is 10 microliter. How much? 10 microliter only in blank. किसमें? Blank में बेटा. Standard में कुछ नहीं डलेगा, test में कुछ नहीं डलेगा. After that we'll put the standard solution. ये किस में जाएगा बेटा? Blank में, standard में, test में? Standard में, yes. It should be 10 microliter. Finally beta, our serum sample, remember, examiner पूछ सकता है कि हमने whole blood क्यों नहीं लिया, serum क्यों लिया. So I think now you have a rough idea why we are taking serum sample. बेटा blank में नहीं जाएगा, standard में नहीं जाएगा, test में 10 microliter. Incubation time is 5 minutes. Incubation time is 5 minutes at room temperature. At room temperature. Incubation time is 5 minutes. Done? Now, next part is calculation. Calculations. How do we calculate this thing, beta? What is the formula for calculating this thing? OD of? No. OD of test upon OD of standard. It will be multiplied by concentration of standard. Yes. The concentration of standard in albumin, it is 4 gram per dl. बेटा albumin standard की जो value है, that is 4 gram per dl. कितना है? 4 gram per dl as per the kit. So this is your calculation part, beta. Now correlating it with total protein value. Total protein value to get A is to G ratio. To get A is to G ratio. बेटा अगर हमें ग्लोबुलिन की वैल्यू चाहिए ना, तो वी नीड टू एस्टिमेट टोटल प्रोटीन. वी नीड टू एस्टिमेट टोटल प्रोटीन इन सीरम सैंपल. इन सीरम सैंपल ब्लड में भी हो जाएगा, बट दैट कैन गिव यू एन एबरेंट वैल्यू. बेटा थोड़ा सा
एबेरेशन आ जाएगा, वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी. सीरम वैल्यू इज मोर क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू. सो वी विल टेक टोटल प्रोटीन इन सीरम. सिमिलरली एल्ब्यूमिन एस्टिमेशन इन द सेम सीरम सैंपल. तो टोटल प्रोटीन में से एल्ब्यूमिन माइनस कर देंगे तो हमें ग्लोबुलिन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? और फिब्रिनोजन तो बेटा सीरम में होता ही नहीं. देयर इज नो फिब्रिनोजन इन सीरम सैंपल. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ ग्लोबुलिन इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू. अब आप कहोगे सर कि इसको एस्टिमेट करने का कोई अलग मेथड क्यों नहीं होता? होता है. खाली ग्लोबुलिन ही एस्टिमेट करना है तो बेटा होता है. ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं किया जाता. लेकिन आप 3 टेस्ट लगाओगे कि 2 लगाना पसंद करोगे? खुद सोचो. टोटल प्रोटीन का लगाओगे, एल्ब्यूमिन का लगाओगे, ग्लोबुलिन का लगाओगे. यू हैव टू थिंक ऑफ द पेशेंट ऑल्सो. नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ लाइक ऑल ऑफ अस यार, जिसको एक एक्स्ट्रा टेस्ट का पैसा जेब से देना पड़ता बेटा. सो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इन दैट वे ऑल्सो. ओके ओके. After this, there is something called A is to G ratio. A is to G ratio, which is albumin is to globulin ratio. Albumin is to globulin ratio. What is the normal value of albumin is to globulin ratio? Yeah, 1.5 to 2.5. 1.5 to 2.5. That's the normal value of albumin is to globulin ratio. Albumin is to globulin ratio. In severe pathologies, beta, this ratio gets reversed. This ratio gets reversed. इसीलिए इसका डायग्नोसिस बेटा, एस्टिमेशन जो होता है ना, ये डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के भी काम आता है. मान लो लिवर सिरोसिस है. क्या है? लिवर सिरोसिस. बेटा ये पूरा रेशियो सर के बल ऐसा उलट जाता है. ग्लोबुलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एल्ब्यूमिन बहुत कम हो जाएगा. In liver cirrhosis, in fatty liver, in advanced stage, grade 3, grade 4 में बेटा. In chronic alcoholics बेटा, this ratio is reversed. अब अगर ये रेशियो रिवर्स होगा तो क्या होगा? जरा सोचो. This ratio will get reversed when albumin concentration drastically falls. When albumin concentration is drastically falls. ये देखो, A is to G रेशियो है. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? और ये रेशियो मान लो 1.5:1 है. कितना है? 1.5:1. खुद सोचो बेटा, ये रेशियो कब ऑल्टर हो सकता है? या तो एल्ब्यूमिन की वैल्यू बहुत कम हो जाए या ग्लोबुलिन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. ओनली इन दैट केसेस. बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है कि एल्ब्यूमिन की वैल्यू इंक्रीज होती है. बहुत रेयर केसेस. एंड दोज रेयर केसेस आर वेरी सिवियर केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन. 99% ऑफ द केसेस में बेटा यही देखा जाता है कि एल्ब्यूमिन की वैल्यू डिक्रीज होती है. एक्सेप्ट फॉर सिवियर डिहाइड्रेशन केसेस, एल्ब्यूमिन लेवल्स ऑलवेज फॉल्स बेटा. वो नॉर्मल रेंज तक आएंगे, उसके ऊपर बहुत बहुत रेयर होता है कि वो जाए. एल्ब्यूमिन की टेंडेंसी क्या है बेटा? नीचे गिरने की ही है. और ग्लोबुलिन की टेंडेंसी क्या है बेटा? ऊपर जाने की. दिस कॉजेज द रिवर्सल ऑफ A to G रेशियो. अब जब एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो हैम्पर होगा तो क्या इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा बेटा? एल्ब्यूमिन फ्रैक्शन. विच फ्रैक्शन? यानी कि बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा. इससे क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी बेटा? जो जो एल्ब्यूमिन काम करता था, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. ट्रांसपोर्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बेटा वो ब्लड में फ्रीली घूमेगा, which is dangerous, जिससे इक्टेरस के सिम्टम्स आएंगे. इक्टेरस समझते हैं बेटा? जॉन्डिस like yellowing of that sclera, nails, skin होता है ना बेटा, that icterus जिसको हम बोलते हैं. Certain drugs and their metabolism will start getting hampered. Transport of hormones will get severely affected. Transport of hormones will get severely affected. Primary one is thyroid hormone. And you all know how important thyroid hormone is.
इसीलिए आपकी बॉडी में बेटा A:G रेशियो का मेंटेन्ड रहना बहुत जरूरी है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर. बिना कुछ बायोप्सी या सर्जरी के बेटा ये बहुत सारी चीजें बता देता है. द हेल्थ ऑफ योर लिवर, योर जिसे कहना चाहिए एक बेसिक प्रोटीन प्रोफाइल, एवरीथिंग. ओके. आफ्टर दैट please write down the result part beta. After calculation, this A:G ratio has to be incorporated in the calculation part. जैसे calculations में लिखना, ठीक है. After that, the result part. ये बेटा जिस दिन estimate करेंगे आप लोग, अब अपना result एल्ब्यूमिन का इसमें लिखिएगा. आपने पीछे शायद estimate किया होगा टोटल प्रोटीन का भी, है ना. आप सबने टोटल प्रोटीन का प्रैक्टिकल लिखा है ना. उसमें बेटा जो भी टोटल प्रोटीन की वैल्यू आ रही होगी, जितनी भी आ रही है, उसमें से एल्ब्यूमिन माइनस करके ग्लोबुलिन भी रिपोर्ट करना. वहां से देख लेना टोटल प्रोटीन की क्या वैल्यू है, उसमें से एल्ब्यूमिन माइनस करना एंड रिपोर्ट ग्लोबुलिन आल्सो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन. कौन सा पार्ट? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन. The brief role of albumin has been explained in the introductory part beta. No need to repeat it. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था that elevated levels of albumin, please pay attention here beta. Elevated, बढ़ा हुआ albumin बहुत rare होता है. क्या होता है? Rare. It is not easily found. बढ़ा हुआ albumin. नहीं, बढ़े हुए albumin से ये मत कहना कि सर अगर किसी का 6 आ रहा है तो ये बढ़ा हुआ है. That is borderline increased. इतना बेटा मशीन का एरर भी होता है. आपको क्या लगता है मशीन जो छाप के देती है वो एग्जैक्टली ठीक होता है? नो. There is certain errorous component even in machine also बेटा. इसलिए 5 से 10% तो बेटा हम क्लिनिशियन लोग भी मशीन का एरर लेके चलते हैं. आप लोगों का फर्स्ट ईयर है बेटा. ऐसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स जो क्लिनिक से आपको मिले ना, उसको हमेशा अपने पास रखना. अपने आपकी मेडिकल फील्ड में आगे बहुत काम आएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज. ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज होता है 180 होता है, यानी 181, 182 या 190 पे बेटा वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है. मेरे पास रिपोर्ट है बेटा. द पेशेंट हैज रिपोर्टेड 210 एंड हिज बेनेडिक्ट टेस्ट इज नेगेटिव. तो मशीन भी 100% हर बार ठीक नहीं होती. हाँ, किसी का 7.58 आ रहा है बेटा, ये बहुत रेयर होता है. इट इज इन सिवियर डिहाइड्रेशन. सिवियर dehydration. So elevated levels of albumin are found in severe dehydration. Severe dehydration. Now, interesting thing and the important thing, cases or you can say pathologies where the level is decreased. First one is, बोलो क्या होना चाहिए? क्या? सबसे पहले सोचो बेटा एल्ब्यूमिन बनता कहाँ है? लिवर. तो पैथोलॉजी वहीं से शुरू करो ना. लिवर सिरोसिस. फर्स्ट वन इज लिवर सिरोसिस. लिवर सिरोसिस. और बोलो बेटा और कौन सी पैथोलॉजी होती है लिवर में? क्या? अब वायरल हटा दोगे हेपेटाइटिस भी चलेगा, दौड़ेगा. यस. हाँ, फैटी लिवर इट कैन बी बट नॉट एवरी टाइम इट इज. सो अभी तक हमने क्या क्या लिखा बेटा? First one is liver cirrhosis. Second one is hepatitis. Third one is बोलो और क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन. एल्ब्यूमिन का रोल मैंने क्या बताया था बेटा? बेटा न्यूट्रिशन में भी तो होता है. सो माल न्यूट्रिशन. Fourth one
बेटा याद करो अपने क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के केस। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाते हो ना, बेनेडिक्ट्स, रोथेरास, प्रोटीन, एक केस उसमें मिलता है जिसमें एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत सीवियरली कम हो जाता है। बोलो, देयर इज वन क्लिनिकल कंडीशन देयर, yes, or you can say diabetic nephropathy, diabetic nephropathy, diabetic nephropathy। ठीक है, कितने केस हो गए? 4 हो गए। एक और लिखोगे, fluid loss due to severe burns, fluid loss due to severe burns। याद रखना बच्चों, A:G रेशियो हमेशा उल्टा ही होता है, इट इज ऑलवेज रिवर्स्ड। और वो रिवर्स ही क्यों होता है बेटा? ग्लोबुलिन की वैल्यू ओवरऑल बॉडी में कांस्टेंट ही रहती है, या जिसे कहना चाहिए कोई बहुत सीवियर क्रॉनिक पैथोलॉजी हो जाए तो वो बढ़ ही जाती है, वो कम नहीं होगी। लेकिन एल्ब्यूमिन की वैल्यू जो होती है या एल्ब्यूमिन का कंटेंट होता है बेटा, उसकी टेंडेंसी बढ़ना नहीं होता, उसकी टेंडेंसी घटना ही होता है। इसीलिए that A:G ratio is always reversed. Okay, so this completes with your today's class. Please be seated. अभी जाने को नहीं बोला है बेटा। Now let us just recapitulate this again, 5 minutes. First one is, what is the principle of this estimation? बोलो। Albumin reacts with, पूरा नाम बोलो, BCG क्या? ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, to form a green color complex in a buffered medium, intensity of the complex is directly proportional to amount of albumin present in the sample. उसके बाद सैंपल कलेक्शन हमने कैसे किया था बेटा? सीरम से किया था। कैसे किया था? सीरम से। वाई सीरम ओनली? क्योंकि बेटा इसमें फिब्रिनोजन का पार्ट नहीं होता, और जब हम सीरम में टोटल प्रोटीन एस्टिमेट करेंगे, क्या एस्टिमेट करेंगे? टोटल प्रोटीन, वी कैन गेट A:G रेशियो, वी कैन गेट A:G रेशियो। ग्लोबुलिन कैसे मिलेगा? टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन। आफ्टर दैट प्रोसीजर में क्या था? 1000 माइक्रोलीटर ऑफ BCG reagent, 1000 microliters of BCG reagent and 10 microliters of distilled water in blank, that standard solution of 4 mg per dl in standard, और टेस्ट में हमने 10 माइक्रोलीटर क्या डाला था? सीरम सैंपल। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट बेटा, OD ऑफ टेस्ट अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड, वो तो आपको याद है। यहाँ पे एक चीज जो नहीं जुड़ी है वो क्या है? टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन will give you the value of ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन की वैल्यू हमें क्यों चाहिए? फॉर एस्टिमेटिंग A:G रेशियो। ओके, आफ्टर दैट क्लिनिकल पार्ट, एलिवेटेड वैल्यूज आर रेयरली सीन, एल्ब्यूमिन एलिवेटेड वैल्यूज आर रेयरली सीन, नॉट वेरी कॉमन, और जहां होती भी हैं, these are the cases of severe dehydration, but the values decreased in which all clinical cases beta? liver cirrhosis, hepatitis, क्या? malnutrition, क्या? diabetic nephropathy and fluid loss due to severe burns नहीं बेटा, severe burns। अब अगर कैंडल से या किसी चीज से मेरी ये उंगली जल जाए तो बेटा मेरे में उसमें एल्ब्यूमिन की कमी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं अगर पूरा ही झुलस जाऊं, इन दैट केस एल्ब्यूमिन विल बी सीवियरली हैम्पर्ड। ओके, ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स विद योर क्लास। नाउ यू हैव टू गेट योर seminar topics also. Okay, so please wait for 5 minutes.